Hello students, welcome to my channel. Myself Nitika. Today we will start task 12. Before task 12 कुछ important आपको points बताने हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले. तो ये मैंने फिगर ड्रॉ की है. सबसे पहला है ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है? ट्रांसवर्सल क्या होता है? ये ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जब एक लाइन दो लाइनों को कट करती है. एल लाइन है, एम और एन को कट करती है एट द डिफरेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट. ट्रांसवर्सल ये फिगर दी हुई है. तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस. ओके, फर्स्ट है एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल्स नाम से पता चल रहा है. एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? बाहर वाले एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं जो एंगल्स बाहर हैं. इसकी डेफिनेशन है द एंगल्स whose arms do not contain the segment of the transversal in between the two lines are called exterior angles. आपको ये याद रहेगा, एक्सटीरियर एंगल्स बाहर वाले एंगल्स हैं. सो एंगल 1, 2, 7, 8. एंगल 1, 2, 7 and 8. These are exterior angles. Now we will talk about interior angles. इंटीरियर एंगल्स है. इंटीरियर एंगल्स इट मीन्स अंदर वाले एंगल्स. 3, 4, 5, 6. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इंटीरियर एंगल्स द एंगल्स whose arms include the line segment of the transversal in between the two lines called interior angles. Like interior angles are 3, 4, 5, 6. Angle 3, 4, 5 and 6. इंटीरियर एंगल्स हो गए. थर्ड है corresponding angles. इन एंगल्स के बारे में समझेंगे, देन ही हम अगला नेक्स्ट जो टास्क है उसको सॉल्व कर पाएंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं. अ पेयर ऑफ एंगल इन विच वन आर्म ऑफ द both the angles is on the same side of the transversal and their arms are directed in the same direction is called a pair of corresponding angles. See, corresponding angles क्या होते हैं? Like उन्होंने बोला pair of angles, जो एक एंगल का पेयर जो है in which one arm of both angles, ये आर्म है, this one both angles, एंगल जैसे 1 है, 5, 2 and 6 with the same direction. ये एंगल है सेम आर्म की सेम डायरेक्शन में जो है, या लाइक अपर डायरेक्शन में, इसका अपर एंड इसका अपर. 1, 5, 2 and 6, 3, 7 अप डाउन वाले हैं. 3, 7, 4 and 8. These are called corresponding angles. आर्म इसकी सेम है विद द सेम डायरेक्शन में. अगर अपर है तो अपर, लोअर है तो लोअर. लाइक 1, 5, 1, 2 and 6. उधर से हो गया 6, 3, 7 and 4, 7, 3, 7, 4 and 8. These are corresponding pair of angles. Next is alternate. Alternate exterior angle. Alternate तो है, साथ में exterior भी है. वर्ड देखो, वर्ड की तरफ फोकस करना है. Alternate भी बोला है, साथ में exterior भी बोला है. So let's read the definition first. A pair of angle in which one arm of each of the angle is on the opposite sides of the transversal and whose arms are directed in opposite directions. Opposite directions में भी होनी चाहिए and do not include the segment of the transversal in between the two lines is called a pair of alternate exterior angles. See, alternate means alternate भी है और exterior भी है. Like जैसे
ये वाला है एंगल तो 2 एंड उसका ऑपोजिट 8, ये भी एक्सटीरियर है एंड ये भी एक्सटीरियर है। 1 एंड 7 क्लियर है। 2 एक्सटीरियर है, इसका ऑपोजिट 8 भी एक्सटीरियर है। 1 एक्सटीरियर है, इसके ऑपोजिट 7 भी एक्सटीरियर है। सो एंगल 2, 8, 1 and 7, these are called alternate exterior angles. And इसके बाद आएगा नेक्स्ट है alternate इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 इंटीरियर ये है पार्ट 3, 5, 4 and 6। लेट्स रीड द definition first. Alternate interior angles, a pair of angle in which one arm of each of the angle is on opposite sides of the transversal and whose other arms include the segment of the transversal in between the two lines form a pair of alternate interior angles. Like इसका हो जाएगा 3, 5, 4 and 6. 3, 5, 4 and 6. These are the angles. One is left co-interior angles. अब हम बात करेंगे co-interior angles कौन से होते हैं, right? Next is co-interior angles. Let's read the definition. Co-interior angles. Each pair of angles like ये and ये, this one and this one, 3, 6, 4 and 5. Each pair of angles 3, 6, 4, 5 is called a pair of co-interior angles or a pair of interior angles on the same side. Interior तो है with the same side, ये side पे है, of the transversal. These are called co-interior angles like angle 3, 6, 4 and 5. These are co-interior angles. So students, let's start task 12. Name the pair of angles in each figure. Students, this is very easy task. Figure is given, angles are given. You have to name them. कि ये टास्क है, ये एंगल्स है कौन से। अभी आपको सभी एंगल्स के बारे में समझाया है, तो आपको देखना है ये एंगल 1 और ये एंगल 2। मैंने आपको ये करवाया विद द सेम, इसकी आर्म है, सेम डायरेक्शन है, तो ये सेम आर्म सेम डायरेक्शन में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हम कर चुके हैं। अभी मैंने करवाया आपको, बस इनके नेम्स लिखने हैं, बट वो बड़े आराम से देख के लिखना है, कोई एंगल गलत नहीं लिखना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। सेकेंड वन, एक ही ऑल्टरनेट है और साथ में इंटीरियर भी है, अंदर को है, ऑल्टरनेट है, इसके सामने ये है और ये अंदर है। दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? सी, ये ऑल्टरनेट तो हैं लेकिन बाहर है। दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सी, नेक्स्ट है फोर्थ वन, अभी हमने किया है दिस वन शेप में, अभी मैंने कराया था, क्या है इस शेप में है, इनर है, क्या है, को इंटीरियर। बस हमें इनके नेम्स ही बताने हैं, इसको बड़े आराम से करना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टास्क। स्टूडेंट्स, दिस इज टास्क 13, नेम द पेयर ऑफ एंगल इन ईच फिगर। ये टास्क के जो 12 किया है सेम इसी के जैसा है। फिगर्स आर गिवन, एंगल्स दिए हुए हैं, इनके हमें नेम बताने हैं। सी, ये आपको ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है, ये एंगल बताना है, और ये 3 और 4 ऑल्टरनेट है और इंटीरियर है, अंदर को है, तो ये हो गया ऑल्टरनेट भी है
और साथ में इंटीरियर भी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम बात करते हैं सेकंड वन की, ये दोनों बाहर की तरफ है, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है दिस, सेम डायरेक्शन में, ये दोनों हो गए सेम डायरेक्शन के भी होते हैं, तो कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। जो कॉमन आर्म्स में सेम डायरेक्शंस में होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर की तरफ है। नेक्स्ट फिफ्थ, ये 2 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, ऑल्टरनेट भी है और बाहर की तरफ भी है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इनके सिर्फ नेम्स बताने हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, फोर्थ और फिफ्थ, ये दिए हुए हैं सेम कॉमन आर्म में, सेम डायरेक्शंस में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टास्क 13 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू प्रैक्टिस एट होम। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।